हालेलुया, प्रेज द लॉर्ड। परमेश्वर का नाम का धन्य हो। परमेश्वर कितना अच्छा महान है। हमको इतनी देर से हमको सहाय किया परमेश्वर। तो कितना बार भी हम गिरा फिर भी परमेश्वर हमको ऊंचा उठा लिया। हालेलुया। तो सारी स्तुति प्रशंसा हमारा यीशु की होता है। हम सारे थाली बजाएंगे। ये गाना हमारे साथ गाने के लिए मैं बोल को स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आदर और महिमा हमारे यीशु की। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। आमीन। राजाओं का राजा यीशु राजा है, प्रभुओं का प्रभु यीशु प्रभु है। सारे जगत में वो काम करता है, आदर और महिमा सबको देता है। सारे जगत में वो काम करता है, आदर और महिमा सबको देता है। आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया, आओ मिलकर गाएं हम हालेलुया। स्तुति प्रशंसा हमारे यीशु की, आमीन। महिमा हमारे यीशु की, स्तुति प्रशंसा हमारे
कितना सौभाग्य उसके साथ महिमा और पुत्र आनंद उसकी स्तुति गाया कितना सौभाग्य आओ मिलकर गाएगा हालेलुया आओ मिलकर गाएगा हालेलुया मिलकर गाएगा हालेलुया आओ मिलकर गाएगा हालेलुया आओ मिलकर गाएगा हालेलुया आओ मिलकर गाएगा हालेलुया सारे जगत में वो काम करता है आनंद जीवन वो सबको देता है सारे जगत में वो काम करता है आनंद महिमा वो सबको देता है आओ मिलकर गाएगा हालेलुया आओ मिलकर गाएगा हालेलुया मिलकर गाएगा हालेलुया आओ मिलकर गाएगा हालेलुया स्तोत्रम 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 हालेलुया स्तोत्रम 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 हालेलुया 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 स्तोत्रम 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 हालेलुया स्तोत्रम 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 हालेलुया स्तोत्रम 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 हालेलुया हालेलुया स्तोत्रम हालेलुया 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 धन्यवाद प्रभु जी धन्यवाद 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 हालेलुया 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 Thank you, Jesus. Glory, hallelujah. Praise to Jesus. Praise to Jesus.
He is going to take you and me to heaven. Dear brothers and sisters, are we ready to go or not? हम लोग परमेश्वर के हाथों में अपने आप को एक समर्पण करें. I request Anand brother to lead us in prayer. స్తోత్రం 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 నైనా కృపణ తండ్రి మేము యేసయ్యాని కొందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకొంచున్నాం నైనా తండ్రి మాకు అనుగ్రహించిన ఈ పరిశుద్ధ ఆదివారం బట్టి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకొంచున్నాం తండ్రి ప్రభా తండ్రి ఇదో నేను మాకు అనుగ్రహించిన సంఘాన్ని బట్టి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకొంచున్నాం ఎంతవరకు పాటల ద్వారా సృష్టించబడిన దేవాన్ని కొందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకొంచున్నాం దేవనా తండ్రి ఈ సంఘాన్ని దీవించండి ఆశీర్వదించండి దేవనా తండ్రి పారదీపక ప్రభావ తలమానంగా ఉంచినట్టు సహాయం తెచ్చేయండి దేవనా తండ్రి అనేక బిడ్డల ప్రభావ ఆత్మీయ రక్షణ కలిగే సహాయం తెచ్చేయండి దేవనా తండ్రి ప్రభా అనేక బిడ్డలను తోలుకొని వచ్చినట్టు సహాయం తెచ్చేయండి దేవా తండ్రి మాకు ఇచ్చినటువంటి పాస్టర్ గారి ఫ్యాన్ బట్టి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకొంచున్నాను దేవనా తండ్రి వారు మంచి ఇచ్చిన ఆరోగ్యం బట్టి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకొంచున్నాం వారి కుటుంబాన్ని ఎత్తి పట్టుకొని నడిపించండి దేవనా తండ్రి ఎటువంటి శోధనలు రాకుండా సహాయం తెచ్చేయండి దేవా తండ్రి వారి కుటుంబంలో సమృద్ధి అనుగ్రహించమని యేసుక్రీస్తునామమున కొంచున్నాం దేవా తండ్రి వచ్చిన ప్రతి బిడ్డను కూడా దీవించండి ఆశీర్వదించండి దేవా తండ్రి ప్రభు ఎవరైతే ఎటువంటి అవసరాలు ఉన్నారో తండ్రి వారందరూ ప్రభావ తండ్రి వారి అవసరాలను దీవించండి ఆశీర్వదించండి దేవా తండ్రి ప్రభు మాకు ఇచ్చిన ప్రభు ఈ పరిశుద్ధ ఆదివారం తండ్రి ప్రభు ఎత్తబోతున్న వాక్యాన్ని బట్టి కొందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకొంచున్నాం అభిషేకం మాకు ఇచ్చిన పాస్టర్ గారిని మీరు అభిషేకించండి దేవనా తండ్రి వారి ద్వారా తండ్రి వాక్యాన్ని మాత్రం వెదజలైన తండ్రి నిచ్చిన వాక్యాన్ని తండ్రి ప్రభావ తండ్రి అది మరి సాతం ఎత్తిపోకుండా తండ్రి మా హృదయాల్లో భద్రపరుచుకొని ప్రభావ దాని పరంగా నడుచుకునే భాగ్యాన్ని మాకు అనుగ్రహించండి దేవా తండ్రి మరి విధంగా సమాజంలో బతుకుచుండగా తండ్రి ప్రభావ మాకు మాదిరికమైన జీవితాలు మాకు అనుగ్రహించండి దేవా తండ్రి అనేకమైన ప్రభావ అన్ని జనులు మా జీవితాలు ప్రభావ మాదిరికరమైన సహాయం తెచ్చండి మీరు కృప చూపించని నడిపించండి దేవా తండ్రి ప్రభావ మరి సంఘంలో ఉన్న ప్రపంచ బిడ్డని దీవించిన పేరు పేరు దీవించండి దేవా మీరే సహాయం తెచ్చండి దేవా తండ్రి ఇంతవరకు కూడా సంఘంలో మీరు నాకు ఇచ్చిన ధన్యత పడి వందనాలు స్తోత్రం చెల్లించుకొంచున్నాం దేవా తండ్రి సంఘాన్ని వదిలి వెళ్తుండగా కూడా మీరే మాకు సహాయం తెచ్చండి ప్రభావ బిడ్డలను దీవించండి మాకు కూడా మీరు తోడు ఉన్నాడు దేవా తండ్రి మీరే సహాయం తెచ్చండి దేవా తండ్రి ప్రతి బిడ్డను దీవించండి ప్రభావ మరి సంఘారాధన పాల్గొన్న బిడ్డలు కూడా మీరు ఆశీర్వదించండి దేవా తండ్రి ఇదిగో ప్రభావ వాక్యాన్ని మీ ముందు పెట్టుకొంచున్నాను మీరే సహాయం తెచ్చండి కృప చూపించమని త్వరలో ప్రభావం యేసుక్రీస్తునామమున పేరు బతిమాలి వేడుకొంచున్నాం తండ్రి आमेन आमेन हालेलुया प्रेज द लॉर्ड हम लोग सब लोग खड़े हो जाएं अपने अपने जगह में लेट्स ऑल राइज टू आवर फीट इन आवर प्लेसेस एंड लेट्स रीड अ साम इन अ रेस्पॉन्सिव रीडिंग एक भजन संगीता हम लोग बारी बारी आयत में पढ़ेंगे भजन संगीता 27 हम लोग पढ़ेंगे साम 27 वी विल रीड इन अ रेस्पॉन्सिव रीडिंग मैं हिंदी में पढ़ूंगा आप लोग अपने अपने भाषा में आप लोग बारी बारी आयत में पढ़े साम्स 27 यहोवा परमेश्वर मेरी ज्योति और मेरा उद्धार है मैं किससे डरूं यहोवा मेरे जीवन का दृढ़ गढ़ ठहरा है मैं किसका भय खाऊं जब कुकर्मियों ने जो मुझे सिखाते और मुझसे वह रखते थे मुझे खा डालने के लिए मुझ पर चढ़ाई की तो वे ठोकर खाकर गिर पड़े चाहे सेना भी मेरे विरुद्ध छावनी डाले तो भी मैं ना डरूंगा चाहे मेरे विरुद्ध लड़ाई ठन जाए उस दशा में भी मैं हिया बांधे निश्चिंत रहूंगा एक बार मैंने यहोवा से मांगा है उसी के यत्न में लगा रहूंगा कि मैं जीवन भर यहोवा के भवन में रहने पाऊं जिसे यहोवा की मंदिरता पर दृष्टि लगाए रहूं और उसके मंदिर में ध्यान किया करूं क्योंकि वह तो मुझे विपत्ति के दिन में अपने मंडप में छिपा रखेगा अपने तंबू के गुप्त स्थान में वह मुझे छिपा लेगा और चट्टान पर चढ़ाएगा अब मेरा सिर मेरे चारों ओर के शत्रुओं से ऊंचा होगा और मैं यहोवा के तंबू में जयकार के साथ बलिदान चढ़ाऊंगा और उसका वचन गाऊंगा हे यहोवा मेरे शब्द सुन मैं पुकारता हूँ तो मुझ पर अनुग्रह कर और मुझे उत्तर दे तूने कहा है मेरे दर्शन की खोजी है इसलिए मेरा मन मुझसे कहता है हे यहोवा तेरे दर्शन का मैं खोजी रहूंगा अपना मुख मुझसे ना छिपा तू मेरा सहायक बना है हे मेरे उद्धार करने वाले परमेश्वर मुझे त्याग ना दे और मुझे छोड़ ना दे मेरे माता पिता ने तो मुझे छोड़ दिया है परंतु यहोवा मुझे संभाल लेगा हे यहोवा अपने मार्ग में मेरी अगुवाई कर और मेरे द्रोहियों के कारण मुझको चौरस रास्ते पर ले चल मुझको मेरे सताने वालों की इच्छा पर ना छोड़ क्योंकि झूठे शख्स जो उपद्रव करने के धुन में हैं मेरे विरुद्ध उठे हैं आखिरी 2 आयत हम लोग इकट्ठा पढ़ेंगे यदि मुझे विश्वास ना होता कि जीवितों के पृथ्वी पर यहोवा की भलाई को देखूंगा
तो मैं मूर्छित हो जाता। यहोवा की बाट जोता रह या बांध और तेरा हृदय दृढ़ रहे। हाँ, यहोवा ही की बाट जोता रह। आमीन, आमीन, आमीन। हालेलुया। हम लोग अपना बाइबल को नीचे रखकर हमारे हाथों को उठाकर हम लोग अल्पक्षण परमेश्वर की आराधना करें। लेट्स कीप आवर बाइबल्स डाउन, लेट्स लिफ्ट अप आवर हैंड्स एंड लेट्स वर्शिप द लॉर्ड फॉर सम टाइम। हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord. He is worthy of all our praise. Hallelujah. He is worthy of all our prayers. He is worthy of all glory today. He is worthy of all praises. He is worthy of all honor. Hallelujah. वो हर एक आदर का योग्य परमेश्वर है। वो महिमा का योग्य परमेश्वर है। वो आराधना का योग्य परमेश्वर है। आज हम उसको आराधना करें। Hallelujah. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. We give you the glory, O God. Hallelujah. We praise you, Jesus. We magnify your name. We glorify your name. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Glory to God. धन्यवाद प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु जी। Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। धन्यवाद के योग्य परमेश्वर, अनुग्रह के योग्य परमेश्वर, हम तेरी आराधना करते हैं, हम तेरी महिमा करते हैं। हालेलुया। We worship you, Lord. All glory, honor and praise and worship and thanks and adoration, oh God, we offer unto you. Hallelujah. We thank you, Lord. We thank you, Jesus. We thank you, Lord. Hallelujah. Praise you, Jesus. Glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Worship you, Lord. Worship you, Lord. Hallelujah. Glory. Hallelujah. Praise you, Jesus. Hallelujah. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Worship you, Lord. Worship you, Lord. All glory. Hallelujah. Hallelujah. Praise Jesus. Praise Jesus. Praise Jesus. Hallelujah. 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 Praise Jesus. Hallelujah. परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, राजाओं का राजा आपके धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। हालेलुया। प्रभुओं का प्रभु आपके धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया। आप पिता परमेश्वर तेरी महिमा करते हैं पिता परमेश्वर, तेरे गुणानुवाद करते हैं पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु जी। सेनाओं का यहोवा तेरे धन्यवाद करते बोलते, धन्यवाद करते बोलते, धन्यवाद करते हैं प्रभु जी। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। हालेलुया, हालेलुया। राजमान को राजा, प्रभुमान को प्रभु जीशु राजा, तुम पवित्र अति बहुमूल्य नाम रे गुणानुवाद करो छु बापा, प्रशंसा करो छु पिता परमेश्वर, गौरवमय परमेश्वर तुम्हारा धन्यवाद करो छु बापा। हालेलुया। ओ पिता परमेश्वर, हालेलुया। प्रांतर पत्र प्रस्तुत करवा परमेश्वर तुम्हारा धन्यवाद करो छु पिता परमेश्वर, तुम्हारा जय जयकार करो छु, तुम्हारा गौरवानुवाद करो छु, तुम्हारा प्रेम पाए तुम्हारा धन्यवाद करो छु बापा, तुम्हारा जय जयकार करो छु पिता परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तुम्हें महान परमेश्वर हो बापा। हालेलुया। तुम्हें दयावंत परमेश्वर हो पिता परमेश्वर। हालेलुया। तुम्हें अनुग्रहकारी परमेश्वर हो। हालेलुया प्रभु, तुम्हारा गुणानुवाद करो छु राजा, तुम्हारा जय जयकार करो छु, तुम्हारा प्रशंसा संभ्रम करो छु। हालेलुया। तुम्हें महिमा पाइबार योग्य परमेश्वर। हालेलुया प्रभु, तुम्हारा महिमा हो, तुम्हारा महिमा हो, तुम्हारा महिमा हो बापा। हालेलुया। प्रेज जीसस, प्रेज जीसस, प्रेज जीसस। Glory to God. Jesus, all our sins and griefs to bear. What a privilege to carry everything to God in prayer. Oh, what peace we often forfeit. Oh, what needless pain we bear. All because we do not carry everything to God in prayer. Have we trials and temptation?
प्यारा मित्र और दुख का सहनहार, उसकी शरण हम ले सकते, सांस करके सारे पार, कितना चैन हम भोगने पाते, कितने दुख से बचेंगे जो हम सभी बात ले जाएंगे, प्रभु को हाथ पाएंगे। क्या परीक्षा में हम पड़े हो भी कोई व्याकुलता, वित्तनारी अंदर रोबोस्ते आपको नंदरी अंदर उसके कान में सबका सच्चा मित्र ऐसा कौन है, दुखों में संभाले हाथ, सब निर्बलता वही जानता, उसके कान में सबका क्या हम दबते भारी बोझ से, बल भी जाता सब रहा, प्यारा प्रभु है सहारा, उसके कान में सबका क्या अनाथ और मित्रहीन है, उसके कान में सबका अपनी गोद में वो उठा के शांति तुझे देवेगा। Oh, hallelujah. Hallelujah. What a friend we have in Glory to Jesus. God. Hallelujah. यीशु क्या ही प्यारा मित्र, Hallelujah. जो हमारा दुख को Hallelujah. वो सहने वाला परमेश्वर, Jesus. Hallelujah. हमारा भोजों को उठाने वाला परमेश्वर, Hallelujah. the friend who takes away our burdens, Hallelujah. the friend who wipes away our tears, the friend who takes away our sorrow. Hallelujah. Today he invites us to come to his presence Hallelujah. धन्यवाद and to give all our burdens. Jesus. हमारा सारा बोझ हम परमेश्वर के हाथों में दें। Hallelujah. परमेश्वर आज निमंत्रण कर रहे हैं, Hallelujah. हम क्यों दबे हुए हैं? Lord. Why are we cast down today? Why are we burdened today with the load of care? Hallelujah. हमारा सारा बोझ हम लोग Hallelujah. परमेश्वर के पास लाए। Yes, Jesus. Yes. Oh, hallelujah. परमेश्वर yes. ಎಂದು ನಲ್ಲೋ ಸಖಿ ಯೇಶು ಪಾಪ ದುಃಖಂ ವಾಹಿಕ್ಯಂ എല്ലാം യേശുവോട് ചെയ്യുന്നു. ചൊല്ലിടുമ്പോൾ താൻ കേൾക്കും നൊമ്പരമേറെ സഹിക്കും.
अपनी शांति हमको देने वाला परमेश्वर। हालेलुया। जिस प्रकार माता पिता अपने बच्चों को अपने गोद में बिठाकर सांत्वना देते हैं, शांत करते हैं, वैसे ही परमेश्वर अपने बच्चों को उसकी गोद में बिठाकर परमेश्वर का शांति उनमें देने वाला परमेश्वर है, हमारा परमेश्वर। Hallelujah, hallelujah. Praise the Lord. हालेलुया। Praise the Lord. Hallelujah. रेतिनी अंदरे। Glory to God. Hallelujah, प्रभु। आज हमारा हर एक भोज पवित्र आत्मा का बड़ा उपस्थिति हमारे मध्य में है आज। Holy Spirit, Nindalariandale Rebestereo, mighty, powerful presence of the Holy Spirit is in our midst. Whatever burdens we might be experiencing, He invites us to give all our burdens to the Lord. हमारा हर एक भोज हम लोग परमेश्वर के हाथों में दे दें। हे भोज से दबे हुए लोग, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। All ye that burden with the load of care, come to me and I will give you rest. मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। आज हमारा भोज को लेकर हम लोग परमेश्वर के हाथों में दे दें। परमेश्वर हमको विश्राम देने वाला परमेश्वर है। समर्पण करें, प्रार्थना करें, प्रभु मेरा भोज मैं तेरे हाथों में देता हूं। Let's pray, let's surrender. God, I give my burdens to you. Hallelujah. Hallelujah. परमेश्वर का I greet and welcome all brothers and sisters and children who have come here in the matchless name of Lord Jesus Christ. परमेश्वर का महान नाम से मैं सबको स्वागत करता हूँ। And today it's a joyful day that God has given to us, एक आनंद का दिन है जो परमेश्वर ने हमको दिया है, and therefore we should rejoice in the Lord. इसलिए हम लोग आनंद करें इस दिन के लिए। The word of God says, परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, rejoice in the Lord always. हमेशा आनंदित रहो। And again I say rejoice. दोबारा बोलता हूँ कि आनंदित रहो। Hallelujah. हालेलुया। Therefore we should always rejoice in the Lord. इसलिए हम लोग हमेशा परमेश्वर में आनंदित रहना है। And when we rejoice, जब हम लोग आनंदित रहते हैं, the joy of the Lord will become our strength. परमेश्वर का आनंद हमारा शक्ति सामर्थ बन जाता है। And then we can go forward in great victory. तब हम लोग एक अच्छा विक्ट्री की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। Amen. Let's turn to the word of God for a short meditation. हम लोग थोड़े समय के लिए परमेश्वर के वचन की ओर जाएंगे। Let's turn to 2 Corinthians chapter 2 verses 11. हम लोग देखेंगे दूसरा कोरिन्थी उसका 11 अध्याय का दूसरा आयत, 2:11. 2 का 11 आयत हम लोग देखेंगे। शैतान को हम पर दाव न चले इसको। कि हम उसकी युक्तियों से अनजान नहीं। Satan should get an advantage of us, for we are not ignorant of his devices. சாத்தானாலே நாம் மோசம் போகாதபடிக்கு எப்படி செய்தேன்? அவருடைய தந்திரங்கள் நமக்கு தெரியாதவைகள் அல்லவே? ଯେପରି ଶୈତାନ ଆମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅପକାର କରିବାକୁ ସୁଯୋଗ ପ୍ରାପ୍ତ ନ ହୁଏ, କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାର ସମସ୍ତ କଳ୍ପନା ସମ୍ବନ୍ଧରେ ଅଜ୍ଞ ନୋହୁ। Lest Satan should take advantage of us, for we are not ignorant of his devices. शैतान हम पर दाव ना चले क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजान ना रहे। One of the biggest devices of the devil is doubt and misunderstanding. सबसे बड़ा जो
युक्ति है वो है doubt. यानी कि डाउट करना. One of the one biggest device of the devil is to create misunderstanding. वो सबसे बड़ा जो युक्ति है वो हम शैतान हमारे अंदर में मिसअंडरस्टैंडिंग क्रिएट करता है. So there are two things. One is doubt and another is misunderstanding. एक है अनजान होना और दूसरा है मिसअंडरस्टैंडिंग को फैलाना. तो शंका और misunderstanding. तो doubt and misunderstanding is the work of the devil. और शंका और जो मिसअंडरस्टैंडिंग है वो शैतान का काम होता है. So when we are in the Lord, जब हम लोग परमेश्वर में होते हैं it's very important that we recognize or discern the devices of the devil. पर शैतान का युक्ति को जानना हमारे लिए बहुत चैलेंजिंग Very needed. और वो आवश्यकता होता है कि शैतान की युक्ति को हम लोग जाने. So in reality, जब हम लोग रियलिटी में देखते हैं the devil has no power शैतान का कोई पावर शक्ति नहीं है. because he has been defeated on the cross of Calvary. ये क्रॉस ऑफ कैलवरी में ऑलरेडी परमेश्वर ने उसको हरा दिया है. But still he is able to put people in various bondages today. फिर भी वो लोगों को बहुत सारे बॉन्डेज में वो डाल देता है. And he is very successful at that also. उसमें बहुत उसको सफलता प्राप्त हुआ है. And he is able to put in fear. और डर भी पैदा कर देता है. He is able to put anxiety Oh. in people. और एंजाइटी भी लोगों के अंदर में डालने के लिए समर्थ हो जाता And है. is able to put worry in people. वो चिंता भी वो डालने के लिए भी वो क्या समर्थ हो जाता है. So he is able to trouble the people to a great extent. यानी लोगों को वो बहुत दूर तक परेशान करने में वो सफल रहता है. तो the devil has lot of devices by which he can put the people in trouble. बहुत सारे युक्ति हैं शैतान के पास जो वो लोगों को ट्रबल में डालने के लिए. And one of the things that devil does is, और सबसे बड़ा एक युक्ति है. and what he does is he shows us shadows. वो क्या परछाई. एक परछाई दिखाता है लोगों को. And the reality he will not show. वो एक जो सच्चाई है वो नहीं दिखाता है. But he will puff up all the reality. वो सब हर एक सच्चाई को क्या करता है छिपा देता है. वो सच्चाई को छिपाकर वो परछाई को हमारे सामने में लाएगा. परछाई जो होता है तिल का ताड़ बनाकर वो क्या करेगा हमारे सामने में रखेगा. तिल क्या होता है? बहुत छोटा एक बीज होता है लेकिन उसको एक पहाड़ समान he will make a mountain out of a mole and he will bring it before us. ऐसा वो परछाई को ऐसे तरह दिखाता है जैसे कि एक मोल के तरह वो दिखा देता है. He will scare us. वो हमको डरा देता है. And he will make us tensed. वो हमको चिंता में डाल देता है. And he will make us nervous. वो हमको घबराहट में भी डाल देता है. And he will make us think we are going to die. वो ऐसा हमको चिंता में डाल देता है कि हम लोग अभी मरने जा रहे हैं. ऐसे वो डाल देता I है. mean we will be shaken completely. हम लोग पूरा डर जाते हैं उस अवस्था से. हम ऐसा डर जाते हैं कि हम लोग हिल जाएंगे हम लोग जो कुछ भी कर रहे हैं. Like that kind of terror the devil will be able to put in you. ऐसा वो हमको डराता है शैतान. लेकिन but what we should do, we should discern the devices of the devil. हम लोग को क्या करना है जो शैतान का जो युक्तियों को जानना है. And when we discern the devices of the devil, we will be able to stand before him. जब हम लोग शैतान की युक्ति को जानेंगे तब उसके सामने हम लोग खड़े हो सकते हैं. And to put you in some trouble, to make you troubled, he will bring people before you. He will bring circumstances before you. He will bring realities, experience, your past, your present, your future. He will bring before you.
and he will trouble you. आपको तंग करने के लिए वो क्या करेगा? वो लोगों को आपके सामने में लाएगा, आपका रिश्तों को आपके सामने में लाएगा, आपका एक्सपीरियंसेस को आपके सामने में लाएगा, आपका पूर्व, आपका वर्तमान, आपका कल को आपके सामने में रखकर आपको वो क्या करेगा? वो आपको तंग करने के लिए कोशिश करेगा. द डिवाइसेस ऑफ द डेविल, शैतान का युक्तियों को हम लोग क्या करना है? हम लोग जानना बहुत जरूरी है. वी नीड टू आइडेंटिफाई, वी नीड टू रियलाइज द डिवाइसेस ऑफ द डेविल टुडे. हम लोग को शैतान का हर एक युक्ति को आज जानने का जरूरत है. टू नो द डिवाइसेस ऑफ द डेविल, तो शैतान के युक्ति को जानने के लिए whom we need, क्या चाहिए? whom we need? Holy Spirit. पवित्र आत्मा. We need the Holy Spirit to know the devices of the devil. Without the Holy Spirit, we can never know the devices of the devil. बिना पवित्र आत्मा से हम जो शैतान की युक्ति को नहीं जान सकते. Let's turn to Romans chapter 15 verse 13. हम लोग रोमी चैप्टर 16 अध्याय उसका 13 को देखेंगे. 15 and 13. 15 and 13. பரிசுத்தாவின் பலத்தினாலே உங்களுக்கு நம்பிக்கை பெருகும்படிக்கு நம்பிக்கையின் தேவன் விசுவாசத்தினால் உண்டாகும் எல்லாவித சந்தோஷத்திலும் சமாதானத்திலும் உங்களை நிரப்புவாராக. परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. Amen. Praise the Lord. Now may the God of hope fill you with all joy and peace in believing that you may abound in hope by the power of the Holy Spirit. ओडिया में पढ़े. ସେହି ଭରସାର ଈଶ୍ୱର ତୁମମାନଙ୍କୁ ବିଶ୍ୱାସ ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ତ ଆନନ୍ଦ ଓ ଶାନ୍ତିରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ, ଯେପରି ତୁମ୍ଭେମାନେ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ଶକ୍ତିରେ ଭରସାର ପ୍ରଚୁରତା ଅନୁଭବ କର. देखिए, पवित्र आत्मा का शक्ति में हम लोग क्या करना है? आशा. पढ़िए हिंदी में. परमेश्वर जो आशा का दाता है तुम्हें विश्वास करने में सब प्रकार के आनंद और शांति से परिपूर्ण करे कि पवित्र आत्मा की सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. By the power of the Holy Spirit, your hope may increase. पवित्र आत्मा का सामर्थ से तुम्हारी आशा बढ़ती जाए. You need the power of the Holy Spirit. आपको आज पवित्र आत्मा का पावर को आवश्यकता है. You are in tension. आप टेंशन में है. You are in turmoil. आप लोग अभी परेशान में है. You are in storm. आप लोग अभी तूफान का अनुभव में है. And you are in various kinds of troubles. विभिन्न प्रकार के ट्रबल से आप लोग अभी परेशान हैं. And you cannot sleep at night. अभी आप लोग रात में सो नहीं पाते हैं. You are in pain. आप लोग अभी पेन में हैं. You are in fear. आप लोग अभी डर में हैं. You are nervous. आप लोग अभी नर्वस में भी है. But in the midst of all those circumstances, लेकिन अभी इस बीच हर एक विषय के अंदर में भी, in all those pains, अब ये सारे पेन में भी, if you have the power of the Holy Spirit, अगर आपके अंदर पवित्र आत्मा का सामर्थ है तो you will see, you will know that the devil is attacking you. आप देखेंगे कि आप और जानेंगे कि आपको क्या शैतान आपको अटैक कर रहा है करके. So when we have the Holy Spirit, जब हमारे पास पवित्र आत्मा होता है we can discern or we can know the devices of the devil. तो तब हम लोग शैतान का जो युक्ति है हम उसको जान सकते हैं. When we know the devices of the devil, we can take action against it. जब हम लोग शैतान के युक्ति को जानेंगे तब हम लोग उसके विरुद्ध में एक्शन ले सकते हैं. Let's turn to 2 Corinthians 10 and 5. जब हम लोग 2 कोरिन्थियों उसका 10 का 5 आयत हम लोग देखेंगे. அவைகளால் நாங்கள் தர்க்கங்களையும் தேவனை அறிகிற அறிவுக்கு விரோதமாய் எழுப்புகிற எல்லா மேட்டிமையும் நிர்மூலமாக்கி எந்த எண்ணத்தையும் கிறிஸ்துவுக்கு கீழ்ப்படிய சிறைப்படுத்துகிறவர்களாய் இருக்கிறோம். इसलिए हम कल्पनाओं का और हर एक ऊंची बात का जो परमेश्वर की पहचान के विरोध में उठती है खंडन करते हैं और हर एक भावना को कैद करके मसीह का आज्ञाकारी बना देते हैं. ଆମେମାନେ ତର୍କ ବିତର୍କ ସବୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଜ୍ଞାନ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଉଠିତ ସମସ୍ତ ଉଚ୍ଚ ବିଷୟକୁ ନିଷେଧ କରୁ, ପୁଣି ପ୍ରତ୍ୟେକ କଳ୍ପନାକୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟଙ୍କ ବାଧ୍ୟ ହେବା ନିମନ୍ତେ ବନ୍ଦୀ କରୁ. Casting down imaginations. हम लोग हर एक कल्पनाओं को हम लोग ऊंची बात को Casting down every high thing. हम लोग सब कल्पनाओं को और
खंडन करते हैं। हर एक सोच विचार को, हर एक हर सोच विचार एक को, ऊंची बात को, हर एक प्रकार का चिंता को हम लोग क्या करना है? खंडन, खंडन करना है। Cast it down. हम लोग खंडन करना है। The imagination is very powerful. और कल्पनाएं बहुत सामर्थ्य है। When we are sitting alone in our home, हम लोग अपने घर में अकेला बैठते हैं, when we are sitting alone in our office, जब हम अपने ऑफिस में अकेला बैठते हैं, when we are alone in the field, जब हम लोग एक फील्ड में हम लोग अकेला बैठते हैं, alone अकेला, is the opportunity for whom? Devil. अकेलापन और एक शैतान को एक अपॉर्चुनिटी देता है। The English proverb says like this: the empty mind is the workshop of the devil. एक खाली मन शैतान का कारखाना होता है। Empty mind is the workshop of the devil. So when he sees you alone, he sees there is a chance to attack. जब हम लोग अकेला बैठते हैं तब उसको एक चांस मिलता है कि वो हमारे ऊपर अटैक करने के लिए एंड ही विल कम एंड अटैक यू, और वो आएगा, वो हमारे ऊपर अटैक करेगा। व्हाट इज द बेस्ट अटैक? वो सबसे बड़ा अटैक क्या है? योर इमेजिनेशन, आपका जो कल्पनाएं हैं। He will bring thoughts in you. आपके अंदर वो बहुत सारे बातें को लाएगा। He will create fear in you. वो आपके अंदर में वो डर को फैलाएगा। यथार्थ रूप में कुछ हुआ नहीं है। In reality, nothing has happened. यथार्थ में कुछ नहीं हुआ है। But the devil, लेकिन जो शैतान है, will make it so big before you. वो इतना बड़ा आपके अंदर सामने वो बड़ा करके रखेगा। You will, where you are sitting, you will not be able to sit. जहाँ पर आप बैठे होंगे वहाँ पर आप बैठने के लिए भी आप लोग क्या करेंगे? घबराएंगे। For example, if you get a pain in your heart, जब अगर आपके अंदर हार्ट में कोई किसी प्रकार का कोई पेन है, and दर्द है, let's say right side of your chest, अगर आपका राइट साइड चेस्ट में कुछ पेन है, so the devil will bring thoughts in you. और शैतान आपके अंदर ऐसे चिंता को लाएगा। You are very healthy person. आप बहुत अच्छे हेल्दी पर्सन है। You are doing exercises regularly. आप हमेशा व्यायाम वगैरह करते हैं। Your diet is good. आपका डाइट बहुत अच्छा है। Your medical checkup is going on regularly. आप हमेशा मेडिकल चेकअप करते हैं। The doctor has given you green signal. There is no problem. आपको डॉक्टर भी सब कुछ अच्छे बोले हैं। You ate potato in the morning and gas happened in your stomach. अगर आप सुबह अगर आलू अगर खाएंगे तो शाम को गैस हो जाएगा। सुबह आप आलू खाए थे, वो गैस हो गया पेट में, और दिन को आपको छाती में थोड़ा दर्द आ गया। पेन इज ऑफ द गैस। मैं जस्ट एक उदाहरण बोल रहा हूँ, जस्ट एन एग्जांपल। पेन इन योर राइट साइड ऑफ द चेस्ट, व्हाट द डेविल विल डू? शैतान क्या करेगा? He will tell your cholesterol is very high. वो आपको बोलेगा कि आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत हाई हो गया है। Your BP might be very high. हो सकता है आपका बीपी बढ़ गया है। Maybe there might be a block in your artery. हो सकता है आपके हार्ट में कुछ ब्लॉकेज भी आ गया हो। These days your exercise is down. One block, not 2 blocks may be there. अभी एक्सरसाइज कम हो गया है, इसलिए 1 ब्लॉक नहीं 2 ब्लॉक होगा। 3 seconds passed. 3 सेकंड के बाद जाने के बाद you ate mutton last week. 3 blocks. लास्ट वीक आपने मटन खाए थे, 3 ब्लॉक्स हो गया। You went to party, 4 blocks. आप अगर पार्टी में गए होंगे तो 4 ब्लॉक्स हो गया है। 5 seconds. 5 सेकंड के बाद 5 seconds में, and you are thinking pain will increase. Definitely confirm 5 blocks. आप 5 सेकंड में तो आपका पेन और बढ़ते जाएगा। 5 ब्लॉक है करके शैतान क्या करेगा? वो आपके हृदय में डाल देगा। आप बैठे ही बैठे पसीना निकलने लगेगा। अच्छा हवा चल रहा है, wind is blowing, अच्छा हवा चल रहा है, but you will start sweating. लेकिन आपका पसीना निकलते जा रहा है। What is the devil doing? शैतान क्या किया यहाँ पर? He is taking control of your imagination. आपका कल्पनाओं के ऊपर उसका वो कब्जा कर लिया है। He is taking control of your thought. आपके चिंता के ऊपर उसने कब्जा कर लिया है। And is taking control of your mind. आपका माइंड के ऊपर भी उसने कंट्रोल कर लिया है। What we should do, Paul says, यहाँ पर पॉल क्या बोल रहे हैं? cast down. यहाँ पर आपको क्या करना है कि
खंडन करना है उसको. और उसको खंडन करना है शैतान की युक्ति को. We are sitting in a very peaceful atmosphere. आप एक अच्छा शांति के जगह में आप लोग बैठे हैं. But if terror comes in you, जब अगर आपके अंदर भय आ गया है, you will not be able to sit with peace. तो आप शांति के साथ नहीं बैठ सकते. I saw a house. मैं एक घर को देखा हूँ. He a very big house he has. बहुत बड़ा एक घर था. His main gate has 3 locks. मेन गेट में 3 लॉक्स है. Then when you come enter his house, जब हम लोग उसके घर में एंटर करेंगे, the porch has a grill. सामने एक ग्रिल है. And the grill has 3 locks. ग्रिल में भी 3 लॉक वहां पर लगाया गया था. Then the door has 1 grill. फिर डोर के सामने एक ग्रिल है. The grill also has 3 locks. ग्रिल में भी 3 लॉक था. Then there is a door. देन उसके बाद एक डोर आता है. The door has also 3 locks. फिर डोर में भी 3 लॉक था. Plus there is another chains and blocks that he has made specifically so that no one will enter his house. उसके बाद भी बहुत सारे चेन है, लॉक है, यानी कि कोई भी घर के अंदर प्रवेश ना कर पाए. Plus CCTV camera in the all compound. फिर चारों कंपाउंड में भी सीसीटीवी कैमरा लगाया हुआ था. Still he says, फिर भी वो बोलते हैं, I have no peace. मेरे अंदर कोई शांति नहीं है. I am afraid. मैं डर कर जी रहा हूँ. Someone will come inside and attack. कोई भी एक आकर मुझे अटैक कर देता है. The devil's work. वो शैतान का काम है. What he does? उसने क्या किया? He takes control of your imagination. उसने उसके कल्पनाओं के ऊपर उसको वो अधिकार कर लिया है. And he takes control of your thoughts. उसके चिंताओं के ऊपर उसने अधिकार कर लिया है. He takes control of your mind. उसके माइंड के ऊपर भी उसने कंट्रोल कर लिया. And he starts to terrify you. वो उसको डराने के वो शुरू कर दिया था. But the word of God says, लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है, Philippians 4:6, फिलिपी चैप्टर 4 का 6 आयत में अगर देखेंगे, be anxious for nothing. किसी भी बात का चिंता मत करो. किसी भी बात का चिंता मत करो. Don't be anxious for anything. किसी भी बात का चिंता मत करो. Anxiety kills a person. चिंता एक व्यक्ति को मार देता है. How many people die of anxiety? बहुत सारे लोग चिंता के कारण मर गए हैं. And many people get so many diseases because of anxiety. चिंता के कारण बहुत सारे लोगों को बहुत विभिन्न प्रकार का बीमारी आ गया है. Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, be anxious for nothing. किसी भी बात की चिंता मत करो. But in everything, by prayer and supplication and thanksgiving, let your request be made known to God. परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख में उपस्थित किए जाए. So what we should do? तो हम लोग क्या करना है? Instead of sitting in our home, in our office, in our workplace and getting tensed and all worked up, जब हम लोग ऑफिस में, घर में, कहीं पर भी हम लोग बैठते हैं, we should sit in the presence of God. हम लोग परमेश्वर के सम्मुख में बैठना है. I mean, sometimes our mind will not work instantly. हमारा माइंड हमें तुरंत कभी काम नहीं करता है. Sometimes we are in some tension and sometimes our mind will become off. कभी कभी हमारा टेंशन के कारण हमारा दिमाग काम नहीं करता है. This brain will stop working. दिमाग काम करना बंद हो जाता है. Our thought process will stop working. हमारा चिंता करना भी बंद हो जाता है. And our imagination will stop working. हमारा इमेजिनेशन भी काम करना बंद कर देता है. You had that experience? क्या आप लोग उस एक्सपीरियंस को कभी किए हैं? No? है? Yes? It will stop working. वो काम करना बंद कर देता है. You don't know what will happen. आप नहीं जानते क्या हो रहा है. You don't know what to do. आप नहीं जानते क्या करेंगे. And you are in, I mean, you have no idea also what to do. आपको पता नहीं कि क्या करना है. कोई आइडिया आपके पास नहीं है. Absolute darkness. पूरा अंधेरा आपके सामने छा गया होगा. And not a shred of idea, not a shred of light coming to your mind. आपके माइंड में किसी प्रकार का कोई उजाला भी नहीं आया होगा. Word of God says, परमेश्वर का वचन कहता है, that time, उस समय में you kneel down before God. आप परमेश्वर के सामने घुटने टेकना है. Your mind is not working, आपका दिमाग काम नहीं कर रहा है, but your heart may work. लेकिन आपका जो हृदय हो काम कर रहा है. You may not be able to pray, लेकिन आप प्रार्थना करने की अवस्था में नहीं होंगे.
but just be in the presence of God. लेकिन आपको परमेश्वर के सामने में बैठना है। Your heart will speak out. जब आपका हृदय वहां पर बात करने लगेगा, Your body will speak out. आपका बॉडी वहां पर बात करने लगेगा। There is a language from the body that goes to God. एक भाषा जो आपके शरीर से वो परमेश्वर के पास पहुंचेगा। There is a language that goes to God from the heart. एक भाषा है जो आपके अंदर से परमेश्वर के पास जाकर पहुंचेगा। There is a language that goes to God from your mind. और जो बात आपके अंदर से जो निकलता है वो परमेश्वर के पास जाकर पहुंचेगा। One transmission is happening, one communication is happening. ये परमेश्वर के साथ और आपके अंदर में एक कम्युनिकेशन रहेगा। You are not able to open your mouth. आप अपने मुंह को खोलने के समर्थ में नहीं होंगे। Your voice will not come out. आपके आवाज भी नहीं आएगा, बाहर नहीं निकलेगा। Tears may be flowing from your आपके eyes. आंख से आंसू भी निकलेगा। You are talking to God. आप परमेश्वर से बातें करेंगे। You have to make sure you are talking to Him. आप श्योर करना है कि आप परमेश्वर से बातें कर रहे हैं करके। If God is not there, you are crying, no use. अगर परमेश्वर वहां पर नहीं, अगर फिर भी आप रो रहे हैं तो उसका कोई वैल्यू नहीं है। Make sure, God, I am in your presence. Tell me what to do. Just sit in His presence. आप श्योर करना है कि परमेश्वर आपके सामने है, मैं क्या करूंगा, परमेश्वर से बातें करना है। And the Holy Spirit will start talking to you. पवित्र आत्मा आपसे बातें करने लगेगा। When your problems, when your burdens will go to God. पर जब आपका जो चिंता है, जो बर्डन है, जब परमेश्वर के पास जाएगा, And one word, God, I give my burden to you. Help me. एक ही बात बोलना है, परमेश्वर मैं बर्डन में हूँ, मुझे सहायता करो। Help me. हेल्प मी ओ लॉर्ड। 2 words, help me. 2 बातें आपको बोलना है, मुझे परमेश्वर मुझे सहायता करो। When you say, help me, God, जब आप बोलेंगे मुझे सहायता करो, He will come down. वो आपके सामने आएगा। And He will give you His peace. वो आपका उसका जो शांति है वो आपको अंदर में देगा। Matthew 6:34 says, मैथ्यू चैप्टर 6 का 34 आयत अगर हम लोग देखेंगे, do not worry about tomorrow. काल के लिए चिंता मत करो। And पढ़े हिंदी में, जिसको भी जल्दी मिला पढ़े प्लीज। 6:34 काली पर चिंतित होना नहीं। काली पाई चिंतित हुओ नहीं। काल के लिए चिंता मत करो। Do not be worried about tomorrow. यस, काल के लिए चिंता मत करो। That is the word of God for all of us today. आज हमारे लिए परमेश्वर का वचन ये है, We should not be worried for tomorrow. हम लोग काल के लिए कभी चिंता नहीं करना है। See, now in many places COVID is making a comeback. यस, फिर भी कोविड दोबारा बहुत सारे जगह में आ चुका है। Naturally we will have a tension. हम लोग अंदर ही अंदर हम लोग बहुत टेंशन में होते हैं। And we might be praying. हम लोग प्रार्थना करें, And God, COVID should not come back. आप परमेश्वर कोविड दोबारा नहीं आना है, Lockdown should not come back. लॉकडाउन दोबारा नहीं आना है, Restrictions should not come back. फिर भी रेस्ट्रिक्शन दोबारा नहीं आना है। Because so many problems come because of lockdown. बहुत सारे प्रॉब्लम लॉकडाउन के वजह से आ जाएगा। And today many people are in sorrow because of many problems in the world. आज बहुत सारे लोग के जीवन में बहुत सारे लोग आज दुखित हैं क्योंकि बहुत सारे प्रॉब्लम उनके जीवन में है। One virus, COVID, और वन वायरस है जो है कोविड, it came and destroyed everything. वो आया और बहुत सब कुछ सत्यानाश कर चुका है। And there is nothing that it did not touch. ऐसा कुछ नहीं है जो उसने टच नहीं किया है। It touched every aspect of our life. बहुत सारे चीजों को हमारे जीवन में उसने टच किया है। But what we should do? लेकिन हम लोग को क्या करना है? We should give all our worries to the Lord. हम लोग सारे चिंता को परमेश्वर के हाथ में आज देना है। There are 3 worries in a person. एक इंसान के जीवन में 3 चिंता है। Your past, आपका जो पास्ट अतीत है, and then your present, आपका वर्तमान है, then your future. आपका भविष्य है। You will be worried about your past. आप अगर आपका पास्ट के लिए आप चिंतित है, If you have not done something good, अगर आप कुछ अच्छा नहीं किए हैं, if you have done something wrong, अगर आप कुछ बुरा किए हैं, if there is some report against you, अगर आपके विरुद्ध में कोई रिपोर्ट लिखा गया है, if your boss calls for you a review, अगर आपका बॉस रिव्यू के लिए बुलाते हैं, अगर रिव्यू के लिए आपका बॉस बुलाते हैं, and in the review if your boss says your work is not good, I am firing you, अगर आपका बॉस बोलता है कि तुम्हारा काम अच्छा नहीं है, मैं आपको निकालना जा रहा हूँ, your job is gone. आपका जॉब चला जाएगा। When your job is gone, जब आपका जॉब चला जाएगा, what will you do?
आप लोग क्या करोगे? Your family is there. आपका फैमिली क्या करेंगे? Your EMI is there. आपका EMI वहां पर है, Your vehicle loan is आपका there. गाड़ी भी वहां पर है, Your house loan is there. आपका हाउस लोन भी वहां पर है। What will your family eat? आपका परिवार क्या खाएंगे? And the house rent is to be paid. आपको आपका घर का रेंट आप कैसे देंगे? Children's education. आप लोग बच्चे लोगों का पढ़ाई कैसे होगा? Lord, what will I do? परमेश्वर में क्या करूं? Worry. आपकी चिंता, It will come and engulf you. आपको वो आएगा और आपको वो दबा देगा। But what we should do? लेकिन आप लोग को क्या करना है? And we should overcome that worry. आप उसके ऊपर में विजय प्राप्त करना है And we should pull it down. और आप उसको क्या करना है? वो नीचे उसको आप लोग को लाना है। Matthew 6:27 says, मैथ्यू 6:27 ऐसा बोलता है, by worrying, can you add 1 cubit to your stature? जो चिंता करके अपनी आयु में एक घड़ी भी बढ़ा सकता है। Can you add 1 cubit to your stature? क्या आप एक घड़ी आपके चिंता के द्वारा आपके एक घड़ी आप बढ़ा सकते हैं आपके जीवन में? By worrying, भाई एक चिंता करने के द्वारा my hairs will not grow white, my hairs will not go black. मेरा जो सिर का जो बाल है वो ना ही सफेद हो रहा है ना ही वो ब्लैक हो रहा है। Yes. Neither I will grow in height or decrease in. ना ही मैं ऊपर जा रहा हूँ ना ही मैं नीचे की ओर जा रहा हूँ। The Lord says, by worrying, can you add 1 cubit to your stature? परमेश्वर का वचन यहाँ पर बोल रहा है एक घड़ी में चिंता के द्वारा बढ़ा नहीं सकता। The meaning of that word is, by worrying there is no use. यहाँ पर मीनिंग ये है कि चिंता का कोई वैल्यू नहीं है। You are only destroying yourself. आप खुद को क्या कर रहे हैं? डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। By worrying, you are destroying yourself. आप चिंता के द्वारा आप खुद को सत्यानाश कर रहे हो। By worrying, what you do, आप चिंता के द्वारा आप क्या कर रहे हैं? you put restrictions around you. आप अपने चारों तरफ कुछ रेस्ट्रिक्शन ला रहे हैं। Previously, one brother was speaking to me. पिछले दिनों में एक ब्रदर भाई ऐसे बोल रहे थे, He was telling, my wife does not eat anything, मेरा पत्नी कुछ नहीं खा रहा है, only santula. ओनली संतुला खा रहा है। She has some fear in her mind. उनके मन में ऐसा बहुत सारे डर है। She has put restrictions everywhere. उनके चारों तरफ बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन उनको खाने में डाल दिए हैं। No oily food. नो ऑयली फूड नहीं खाएंगे, No masala food. मसाला फूड नहीं खाएंगे, No other any food. अदर कोई ऐसा कोई अन्य चीज नहीं खाएंगे, Only santula. ओनली वो वेज खाते हैं। I don't know the English of santula. Mixed veg, let's say. Mixed veg. Only mixed veg. ओनली मिक्स वेज वो लोग वो खाते हैं। Just see what trouble she is going through. आप थोड़ा सोचिए वो कितना परेशान में वो होंगे। She has put restrictions everywhere. वो उनके चारों तरफ वो बहुत सारे रेस्ट्रिक्शन को खुद लेके आए हैं। God has healed her completely. परमेश्वर ने उनको हील किया है कंप्लीटली, But worry, लेकिन चिंता, fear, डर, nervousness नर्वस gripped her. उनको जकड़ कर रखा है। She put restrictions around her. वो अपने चारों तरफ ने कुछ रेस्ट्रिक्शन भी लेकर आए हैं। You bring roll in the church, she doesn't want. आप चर्च में रोल दो, अगर आप नहीं उनको चाहिए। चर्च में अगर रोल देंगे आप खाने के चर्च लिए में नहीं देंगे। बिरयानी दो, बहन को नहीं चाहिए। आप चर्च में खाना दो, बहन को नहीं चाहिए। हाँ, आप चर्च में स्नैक्स दो, बहन को नहीं चाहिए। हाँ, you bring anything, nothing is अगर आप needed. लोग कुछ भी लेकर आएंगे वो कुछ भी नहीं छुएंगे। All good food, बहुत सब अच्छा खाना है, well prepared. अच्छे से बनाया गया है। स्पेशली चर्च के लिए बोलकर मसाला कम, ऑयल कम, अतर, परफ्यूम, कलर कुछ नहीं डालना है, अच्छा खाना है। बट सिस्टर कांट ईट, व्हाई? वरी। लेकिन बहन नहीं खाते हैं, क्यों? क्योंकि उनके अंदर चिंता है, डर है, नर्वसनेस है। It grips you. वो उनको जकड़ के रखा है ये सारे चीज। It will bind you. वो उनको बांध के रखा है ये सारे चीज। It will make you a bondage. वो बॉन्डेज बनाकर उनको चारों तरफ रखा है। And making a bondage, the devil will make a stronghold in you. जब बॉन्डेज के अंदर रहेंगे तब शैतान उनको क्या करेगा? एक बहुत बड़ा गड्ढे के अंदर उनको रखेगा। He will keep one brick
upon the other, upon the other, upon the other, and he will make a fortress around you. जैसे आपको पता है चारों तरफ ईंटे में अगर हम लोग चारों तरफ जैसे एक पेड़ को रखते हैं वैसे वो उनको रखेंगे। I'm telling the example of somewhere else. मैं दूसरे के बारे में बोल रहा So हूँ, please don't have any misunderstanding. कोई मिसअंडरस्टैंडिंग में नहीं लेने हैं। If it speaks to your life. वो आपका खुद का आपका लाइफ को देखना है। And I heard a brother saying this testimony. और एक भाई ने ऐसे बोल रहे थे कि मैं उनका टेस्टमनी सुन रहा That था। his wife made a hedge of restrictions around her. उनका जो पत्नी है वैसे रेस्ट्रिक्शन में उनका चारों तरफ एक रेस्ट्रिक्शन में उनको रखे हैं। I and my children eat biryani. मैं और मेरा बेटा बिरयानी, मेरा बच्चे लोग वो बिरयानी खाते हैं। But my wife eats suka roti. मेरा जो पत्नी है वो रोटी खाते हैं, Dry chapati. ड्राई चपाती वो खाते हैं। Dry chapati specially made for her. सूखा रोटी उनके लिए वो बनाते हैं। The boiled food specially made for her. बॉइली फूड वो स्पेशल उनके लिए बनाते हैं। No problem. कुछ असुविधा नहीं है। Fear, डर, worry, चिंता, nervousness. नर्वसनेस। The devil what he did? शैतान क्या किया है? He took one brick. एक ईटा उनके सामने रखा है। He put nervousness, worry. एक ईटा को हम लोग देखेंगे तो नर्वसनेस, And then he put worry, देन उसके ऊपर और एक ईटा को हम लोग देखेंगे तो चिंता है, pain, दर्द, और एक ईटा को अगर देखेंगे terror, और भय, and future. भविष्य। I am only 40 years now. जब अभी जस्ट मैं 40 साल का हूँ, By the time I reach 45, जब मैं 45 साल हो जाऊंगा I may be dead. मैं मर भी जा सकता हूँ, I may be dead. मैं मर भी जा सकता हूँ। So what the person does is, what the devil does, यहाँ पर शैतान ने क्या किया? he makes a brick around you, a tower around you. वो पूरा ईंटे को चारों तरफ ईंटों में उसको रखा है। And he makes a stronghold around you. उसका चारों तरफ एक स्ट्रॉन्ग होल उसने बना लिया है। What we have to do? लेकिन हम लोग का क्या करना है? 2 Corinthians 10:4 says like this. 2 कोरिन्थियों चैप्टर 10 का 4 आयत हम लोग देखेंगे। For the weapons of our warfare are not carnal, क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, but they are mighty in pulling down strongholds. पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। पढ़िए जिसको मिला है। क्योंकि हमारी लड़ाई के हथियार शारीरिक नहीं, पर गढ़ों को ढा देने के लिए परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है। देखिए, हमारा weapons of our warfare are not carnal, हमारे जो हथियार है वो शारीरिक नहीं है, but mighty in God बट परमेश्वर के द्वारा सामर्थ्य है to pull down these strongholds. उसको गड्ढों में ढा देने के लिए परमेश्वर का सामर्थ्य है। हिंदी में क्या लिखा है? गढ़, गढ़ों, गढ़ो, यस, गढ़ों के गढ़ो. होल, जो होल, English, that's a different translation, I think. English says Yes. to pull down the strongholds of the devil. स्ट्रॉन्ग यानी कि उसको मतलब शैतान का गढ़ को हम लोग क्या करना है? खंडन करना है या नीचे को खींचकर गिरा देना है। शैतान क्या करता है? हमारे चारों ओर एक गढ़ बनाता है, टावर। ही मेक्स, जैसे मैं एग्जांपल दिया, एक ईटा के ऊपर दूसरा ईटा, तीसरा ईटा, एक ईटा चिंता, दूसरा ईटा डर, तीसरा ईटा घबराहट, चौथा ईटा भविष्य। ऐसा एक एक ईटा लगाते 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 शैतान क्या करेगा? हमारे चारों ओर एक गढ़ बनाएगा। He will make a tower around us. एक गढ़ हमारे चारों ओर बना लेगा शैतान। Oh my children, मेरा बच्चे लोग, my future, मेरा भविष्य, my boss, मेरा बॉस, my sisters, मेरा बहन, my brothers, मेरा भाई, my parents, मेरा परिवार, एक एक ईटा लगा करो क्या कर रहा है? गढ़ बना रहा है। He is making he takes one bricks and is making a tower. एक ईटा लगा करो चारों तरफ एक गढ़ बना चुका है। What you and me we should do? आप और मैं, हमको क्या करना है? In Jesus Christ's name, I pull down. हम लोग को यीशु मसीह के नाम को उससे नीचे खींचना है। And we should break those strongholds. हम लोग को उस गड्ढों को हम लोग को तोड़ देना है। And what then will happen? देन क्या होगा?
all our imaginations, हमारे सारे चिंता है, all our thoughts, हमारे जो सारे चिंता है, what will happen? क्या होगा? It will start going away. और दूर होते जाएगा। When your mind is not working, जब हमारा दिमाग कुछ काम नहीं करेगा, when you pray before God, जब हम लोग परमेश्वर के सामने प्रार्थना करेंगे, light will shine. दया के उछाला आपके हमारे सामने आएगा। But before that, something you need to do. लेकिन उससे पहले हम लोग को कुछ करने की आवश्यकता है। We need to be covered with the armor of God also. परमेश्वर का हथियार हमको लेना है। Ephesians 6:12 when we read, जब एफिसी 6:12 हम लोग देखेंगे, for we do not wrestle against flesh and blood, हमारा जो मल्लयुद्ध है लहू और मांस को नहीं है, but it is against principalities, लेकिन प्रधानों से है, against powers, अधिकारियों से, against the rulers of darkness of this age, संसार के अंधकार के हाकिमों से है, and against the spiritual host of wickedness in heavenly places. आत्मिक सेनाओं से और दुष्टता के से जो आकाश में है। Who is this? वो ये कौन है? This is the devil. ये शैतान है। We think human beings are our enemies. हम लोग सोचते हैं कि कोई इंसान हमारा शत्रु हो सकता है। We think our neighbors are our enemies. हम लोग सोचते हैं हमारा जो पड़ोसी हमारा शत्रु है। We think our body is our enemy. हम लोग सोचते हैं कि हमारा शरीर हमारा शत्रु है। Oh, God did not give me a good body. हम लोग को परमेश्वर का अच्छा शरीर नहीं दिया है। It is always sick. और हमेशा हमें रोग में आ जाता हूँ। It is always in pain. हमेशा दर्द में रहता हूँ। It is always in trouble. हमेशा ट्रबल में मैं आ जाता हूँ। Oh, I don't have a good life. मेरा एक अच्छा जीवन मेरा नहीं है। My friends have a good life. मेरा दोस्त लोग का एक अच्छा लाइफ My होता है। relatives have a good life. मेरा रिलेटिव्स का बहुत अच्छा लाइफ उनका बिताते हैं। They don't take any medicines. उन लोगों को कोई मेडिसिन का आवश्यकता नहीं पड़ता I है। have one bag full of medicines. मेरा मेडिसिन में बैग फुल हो चुका है। Oh, my life is a condemned life, Shrapi. मेरा जीवन एक अच्छा जीवन नहीं है। My life is a cursed life. मेरा एक श्रापित। श्रापित। एक मेरा जीवन जो एक श्रापित जीवन बन चुका है। We will come and think of committing suicide. मैं सुसाइड करने के लिए चिंता कर रहा हूँ। I am going to end my life. मैं अपने जीवन को नाश करने के लिए जा रहा हूँ। To those hearing me online, God is speaking to you today. If you have worry engulfed in your life, God speaks to you. And not only there, here also, that if worry engulfs us, and if you're thinking of committing suicide, going back, forsaking everything, God speaks that He is the God of yesterday, today, and forever. He is in control. जो हमें ऑनलाइन में देख रहे हैं, परमेश्वर उनसे बातें करता है। अगर आप खुद को आज नाश करना चाहते हो तो आपको क्या करना है कि पीछे जाना है और परमेश्वर के सामने आप लोग को प्रार्थना करना है, क्योंकि वो परमेश्वर आज काल और युगानुयुग एक सा है। When we trust in God, जब हम लोग परमेश्वर के ऊपर भरोसा करेंगे, when we discern the devices of the devil, जब हम लोग शत्रु का हथियार को हम लोग ले लेंगे, जब हम शैतान का युक्तियों को पहचानेंगे, जब हम लोग शत्रु को युक्ति को हम लोग पहचानेंगे, we will know how to attack it. हम लोग को पता चलेगा कि हम लोग कैसे उसको अटैक कर सकते हैं। Now we know no human being is our enemy. हम लोग को अभी पता चल गया कोई भी इंसान हमारा शत्रु नहीं है। But the enemy is who? हमारा शत्रु कौन है? It's the devil. शैतान है। And he is provoking them. वो आपको उकसाता है। And he is working against them. वो आपके विरुद्ध में काम करता है। But attack is against you. लेकिन आपके अगेंस्ट वो अटैक करता है। But he is using your relatives. लेकिन वो आपका रिलेटिव्स को यूज करेगा आपके विरुद्ध में। He is using your family people. वो आपके फैमिली लोगों को आपके विरुद्ध में यूज करेगा। He is using your friends. वो आपका फ्रेंड लोगों को भी यूज करेगा आपके विरुद्ध में। He may be using your colleagues also. हो सकता है आपके कॉलीग्स को भी वो यूज कर सकता है। He may use anything. वो सबको यूज कर सकता है। He may use your past, your present, your future. आपका वर्तमान को, आपके भविष्य को, आपके पास्ट को भी वो यूज कर सकता है। But what we should do? लेकिन आपको क्या करना है? Break down the strongholds of the devil. आपको क्या करना है? वो उस गड्ढों को वो आपको क्या करना, नीचे खींचना है। Break down. उसको तोड़ डालना है उस गड्ढों को। And when we break down, जब हम लोग उसको तोड़ देंगे, we will be able to stand strong. तब हम लोग परमेश्वर के सामने खड़े रह पाएंगे।
And the word of God says परमेश्वर का वचन ऐसा कहता है, that when we take the armor of God, जब परमेश्वर का हथियार हम लोग ले लेते हैं, that what is that armor? ता वो हथियार क्या क्या है? When we gird our waist with truth. हमारा कमर को जब हम सत्य से हम लोग क्या करते हैं? सत्य से कसते हैं, कसना है नीचे की ओर. Ephesians 6:13-14 when we read, we have to gird our waist with the truth. Ephesians 6:13-14 में हम लोग देखते हैं अपने कमर को हम लोग कसना है. Don't take the refuge of lie in your life. झूठ का सहारा, झूठ का सहारा अपने जीवन हम लोग अपने जीवन में नहीं लेना है. never कभी नहीं लेना है. you tell one lie, आपको एक ही बात बोलना है, then you will have to say 1,000 lies behind it. अगर आप एक झूठ बोलेंगे तो आपके जीवन में और भी 1000 आप झूठ बोलने के लिए आज आपके जीवन में आएगा. And maybe you may be successful in proving your point by the 1,000 lies that. अगर आप वो सारे 1000 झूठ से भी आप आपको प्रूव करना चाहते हो, सक्सेस हो जाते हो, But still you will be a liar in the presence of आप God. परमेश्वर के सामने एक झूठा व्यक्ति कहलाओगे. And the breakthrough of God will not come in your आप life. परमेश्वर का जो ब्रेकथ्रू है आपका अंदर में नहीं, आपके जीवन में नहीं आएगा. झूठ का सहारा लेकर जब हम एक झूठ के पीछे 1000 झूठ जब हम बोलते हैं, हम हमारा पॉइंट को हम लोग प्रूव कर सकते हैं दूसरे लोगों के सामने, लेकिन परमेश्वर के सामने में हम लोग झूठा इंसान बनकर रह जाएंगे. परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में उतरेगा नहीं. परमेश्वर का छुटकारा आपके जीवन में नहीं उतरेगा अगर आप लोग झूठ के सहारा लेंगे. Breakthrough of God will not descend in our life. परमेश्वर का छुटकारा हमारे जीवन में नहीं आएगा. We should gird our waist with. हम लोग को सत्य का कमर कसना है. Then breastplate of righteousness. हम लोग को धार्मिकता का जिलम पहनना है. On our chest there should be a plate to guard us. हम लोग को धार्मिकता का जिलम पहनना है. Breastplate of righteousness. यस, धार्मिकता का जिलम. When we put it upon our bodies. जब हम लोग अपने शरीर में पहनते हैं, by अगर if our shield is not able to block, then the तीर will come, the arrow will come and touch the breastplate. अगर हम लोग ठीक से अगर नहीं पहनते तो बहुत सारे शैतान का तीर वो हमारा शरीर में भी लग सकता है. So when we have the breastplate of righteousness, जब हम लोग धार्मिकता का जिलम पहनेंगे, if you are a righteous person, अगर आप लोग धार्मिक व्यक्ति हैं, sometimes your decisions will be difficult. बहुत बार आप अपना डिसीजन difficult हो सकता है. आपका जो डिसीजन है वो डिफिकल्ट हो सकता है. But if you are a righteous person, लेकिन अगर आप एक धार्मिक व्यक्ति हैं, if you stand strong in the Lord, अगर आप परमेश्वर के सामने स्ट्रांग खड़े रहे हैं, even if you have to take tough decisions, अगर आप एक टफ डिसीजन भी लेते हो आपके जीवन में, you will have the peace of God. आपका अंदर में परमेश्वर का शांति आएगा. But if you are not righteous, अगर आप धार्मिक नहीं हैं, if you make your hands impure, अगर आप अशुद्ध अगर हाथ आपका अशुद्ध है, my friends are doing it, I will also do it. मेरा दोस्त लोग ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूंगा. My colleagues are doing it, I will also do it. मेरा कॉलीग्स भी ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूंगा. My neighbor is doing it, I will also do it. मैं भी, मेरा नेबर भी ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा करूंगा. People are doing it, I will also do it. लोग भी ऐसा कर रहे हैं, मैं भी ऐसा कर रहा हूँ. Don't follow people. कभी भी लोगों को आप लोग फॉलो नहीं करना है. You will end in a ditch. आप लोग गड्ढे में गिर जाओगे. Once a person was traveling. एक व्यक्ति जब एक दिन था, एक व्यक्ति ट्रैवल कर रहा था. He was traveling in his car. वो अपने कार में ट्रैवल कर रहा था. He bought a new car. वो एक नया कार खरीदे थे. And he was driving very happily with his वो family. बहुत खुशी के साथ वो ड्राइविंग कर रहे थे. And it's a long journey. बहुत दूर का यात्रा था. So before him a bus was going. उससे पहले एक बस उनको क्रॉस करके गया. So this person who is driving, ये जो व्यक्ति जो ड्राइविंग कर रहे थे, he is thinking, वो गाड़ी चलाने का समय में ऐसे सोच रहे थे, the bus is going before me. मेरा पहले बस अभी चला गया है. And it is going before me. मेरे सामने में बस जा रहा मेरा है. सामने से बस जा रहा है. So it is clearing the path for me. मेरे लिए जो रास्ता है पूरा क्लियर है. So I will
drive very happily. मैं खुशी के साथ अभी ड्राइव कर सकता हूँ, No tension. कोई बिना कोई चिंता के मैं ड्राइव कर सकता हूँ। What he did, और वो क्या किया, he stopped looking at the road. वो रोड में रुक गया, He was looking at the bus. वो बस को देखा, So wherever the bus is going, जहाँ पर बस जा रहा है he also has to go there. और वो भी उसको वहाँ भी जाना है, Because the destination is same. वहाँ पर उनका यात्रा का डेस्टिनेशन सेम है। But the bus driver is very concentrated on the road. जो बस का ड्राइवर है वो रोड के पर पूरा ध्यान में लगाकर गाड़ी चला रहा है, And this car driver is very concentrated on the bus. और जो कार का ड्राइवर है वो बस को देख रहा है। So suddenly, सडनली क्या हुआ, his family, they were all discussing something. और उनका परिवार में कुछ ऐसे बातें डिस्कस चल रहा था। And his wife shared a very laughable joke. वो उनका जो पत्नी थे कुछ जोक्स वगैरह सुना रहे थे। And he is looking at the bus. वो बस को देख रहे थे, And he started laughing. वो बस को देखकर हंस रहे थे, The children started laughing. और उनका बच्चे लोग भी हंस रहे थे। The bus is wide. बस बहुत बड़ा था, And but there was a ditch in the road. लेकिन रोड में एक छोटा सा एक गड्ढा था, बड़ा गड्ढा था. बहुत बड़ा एक गड्ढा था। So the bus, what it did, बस ने क्या किया, the driver was very smart. ड्राइवर बहुत स्मार्ट था, He balanced the bus and he took both the wheels and between in both sides of the ditch. वो चतुराई के साथ वो जो गड्ढा था उसका वो गड्ढा का दोनों साइड अच्छे से वो बस लेकर चला गया। He passed away. वो चला गया, And there was no problem. उसको कुछ प्रॉब्लम नहीं हुआ। This man is coming. और पीछे से एक कार ड्राइवर आ रहा था, He is laughing. वो हंस हंस कर गाड़ी चला रहा था, And his tears are coming because of laugh. वो हंस हंस कर रो पड़ा। But suddenly, लेकिन सडनली क्या हुआ, his eyes are not on the road. और उसका जो आँख है वो रोड पे नहीं था। Where was his eyes? कहाँ पर उसका आँख था, It was on the bus. वो बस में वो अपने आँख को लगा रखा था। He was tailgating the bus. और वो बस का पीछे पीछे जा रहा वो था. बस का पीछे पीछे जा रहे थे। Suddenly, सडनली क्या हुआ, when that ditch came before, जब वो गड्ढा उनके सामने आया, he lost control. वो अपना आपा खो बैठे, He fell into the ditch वो गड्ढे के अंदर गिर गए, and his bonnet got hit. और जो उसका जो गाड़ी का जो बॉनेट था वो लग गया, Undercarriage got hit. या गड्ढे के अंदर उसका कार गिर गया, His tire got hit. और टायर भी वहां पर टायर को उनका अंदर गिर गया टायर। Instantly, तुरंत his rims of the tire got bent and it got punctured. और टायर पंक्चर हो गया, रिम भी टूट गया। New vehicle, नया गाड़ी था, now totally break down. और मैं पूरा अभी टोटली ब्रेक डाउन होकर पड़ गया He गाड़ी। came out of the ditch because of the force of speed. वो गड्ढे के अंदर इसलिए गिरा क्योंकि बहुत जोर से वो गाड़ी चला रहा था। But the straight vehicle was now bent. सीधा गाड़ी अभी bent, Yeah. टेढ़ा गाड़ी. अभी सीधा गाड़ी जो था, नया गाड़ी था, अभी वो बेंड होकर गिरा है। It was a new design. एक न्यू डिजाइन का गाड़ी था। The engineer might have marveled. बहुत इंजीनियर बहुत अच्छे थे। And engineer सोचा होगा ये नया डिजाइन कैसे हुआ. इंजीनियर सोचा होगा कि ऐसा नया डिजाइन कैसा हो गया है। Then people, he called emergency. People came with cutters, crane and cut the doors and his family could get वो out. इमरजेंसी को फोन किया और लोग आए और कटर वगैरह सब लेकर आकर वो गाड़ी को निकाला काट कर। When we follow others, जब हम लोग दूसरे को देखते हैं, we will end up in ditch. वो ऐसे ही हम लोग भी ऐसे गड्ढे में गिर सकते हैं। Bible says, परमेश्वर का वचन बोलता है follow Jesus. परमेश्वर को आपको हम अनुकरण करना है। Hebrews 12:2 says, इब्रानी चैप्टर 12 का 2 कहता है, look unto Jesus, परमेश्वर की ओर ताकते रहो, the author and finisher of our faith. वो विश्वास का करता सिद्ध करने वाला यीशु मसीह। Look unto Jesus. परमेश्वर की ओर यीशु देखते रहो। We may go from here. अगर हम लोग यहाँ से जा सकते हैं. हम लोग यहाँ से जा सकते हैं। We may go to a new place. हम लोग एक नया जगह में भी जा सकते We हैं। may go to a new job. हम लोग एक नया जॉब में भी जा सकते We हैं। may go to a new college. और हम लोग एक नया कॉलेज को भी जा सकते We हैं। may begin a new career. हो सकता है हमारा नया कैरियर भी हो सकता We है। may go to our relatives' अगर house. हम लोग एक रिलेटिव के घर में भी जा सकते हैं। Wherever we go, जहां भी हम लोग जाएं, we have only one way to look. हम लोग को एक चीज को ध्यान देना है, The face of Jesus. हम लोग को यीशु मसीह को हम लोग ताकना है।
We don't have to look anyone हम else. लोग को किसी दूसरे को नहीं देखना है। When we look to Jesus, जब हम लोग यीशु को देखते हैं then we will enter heaven. तब हम लोग स्वर्ग को हम लोग प्रवेश करते हैं। And He will give us the strength that we need. वो हमको सामर्थ जो हमको आवश्यकता है वो हमको देता है। Below when we read, जब हम लोग निश्चय देखते हैं verse 15 says, 15 आयत हम ऐसा बोलता है, shod your feet with the preparation of the gospel of peace. शांति का वचन से अपना पांव को क्या करना है? ढकना है। ये शांति के वचन के अपने पाँव को हम लोग को ढक देना है। And shod your feet with the peace, gospel of peace. Then take the shield of faith. जब हम लोग को धार्मिकता का जो चिलम को हम लोग विश्वास का ढाल को हम लोग क्या करना है? विश्वास का ढाल को हम लोग को पहनना है। Then 17 says helmet of salvation उद्धार का टोप and the sword of the spirit, आत्मा की तलवार which is the word of God. जो परमेश्वर का वचन है ले लेना है। And then तब praying always. हम लोग हमें निरंतर प्रार्थना करना है। Always pray. निरंतर प्रार्थना करना है। You get some free time. आप लोग को बहुत समय आपको मिला होगा। In your home, some free time you get. बहुत फ्री टाइम आपको आपके घर में मिलता होगा। Instead of switching on that TV, आप लोग टीवी देखने के समय में instead of switching on that mobile phone, मोबाइल देखने से पहले instead of reopening that newspaper that you already read in the morning, और जब जो आप ऑलरेडी सुबह पढ़ चुका होगा, अगर आप लोग न्यूज़पेपर पढ़ लिए होंगे उस समय में भी आपको समय मिल सकता है। what you do? वहाँ पर क्या करना है में? You pray before God. उस समय में आप परमेश्वर के सामने झुककर प्रार्थना करना You है। have prayed for yourself. जब आप अपने लिए प्रार्थना करते हो, There are countless people who are perishing every day. जो लोग बहुत सारे लोग हैं जो सत्यानाश में गिरे हैं And they are dying and they are in trouble. They are in hospitals, medicals, on the roads, on the streets. They are in pain. Tears are flowing. और जो लोग अभी जो मर गए हैं, बहुत सारे लोग मुसीबत में हैं, जो लोग स्ट्रीट में हैं, वो लोग अभी आंसू की अवस्था में हैं। What you can do, you can pray for them. आप लोग को क्या करना है? उन लोगों के लिए आप लोग को प्रार्थना करना है। And when we pray for them, जब हम लोग उनके लिए प्रार्थना करते हैं, the blessing of God will come in our life. परमेश्वर का आशीष उनके हमारे जीवन में उनके जीवन में आता है। Next time, अगले दिन अगले समय when the devil brings a nervousness in your heart, जब शैतान नर्वसनेस हमारे जीवन में लाएगा, जब एक घबराहट हमारे जीवन में शैतान लाएगा, जब घबराहट हमारे जीवन में शैतान लाएगा, when the devil brings fear in our life, जब शैतान हमारे जीवन में फियर को लाएगा, when डर को the लाएगा, devil brings anxiety in our lives, जब घबराहट को हमारे जीवन में when the शैतान लाएगा, devil brings terror in our lives, जब टेरर को हमारे जीवन में लाएगा, when the devil brings tension in our lives, चिंता को जब हम शत्रु हमारे जीवन में लाएगा, when in the night 3 o'clock you wake up and you have no sleep, जब आप रात 3 बजे उठेंगे आपको नींद नहीं होगा, and when suddenly you have so much of burden in your life, आप सडनली आपके जीवन में बहुत सारे चिंता होंगे, and बहुत बड़ा बोझ से आप दब गए होंगे, you might be burdened with a load of care. बहुत बड़ा बर्डन से आपका जीवन में होगा। God is telling, तब परमेश्वर आपसे ऐसे बोलते हैं, you have a friend in Jesus. आपको यीशु में एक मित्र है। आपको यीशु में एक मित्र है। You have a friend in Jesus. आपको यीशु में एक मित्र है। We sang the song. आज हम लोग गीत को गाए हैं। Have we trials and temptations? अगर हमारे जीवन में कोई टेम्पटेशन भी आता है, हमारे जीवन में अन्यथा कष्ट और दुख अगर है, क्योंकि वो हम लोग परमेश्वर के चरणों में हम लोग उसको लेकर नहीं जाते हैं। We suffer unnecessarily because we do not take it to the Lord in prayer. हम लोग का जीवन में unnecessarily हम लोग सफर करते हैं क्योंकि हम लोगों को उस सारी चीजों को परमेश्वर के सामने नहीं लाते हैं। That sister who was eating the mixed veg, जो सिस्टर जो मिक्स वेज खाते हैं, she heard this word of God वो वचन को सुने हैं and she got strengthened. और उनका जीवन वो सामर्थ को पाए हैं।
and she started declaring. वो बोलने लगे हैं, Night 3 o'clock she will get up जब 3 बजे उठते हैं, and she will be terrified. वो घबराहट उनका जीवन में था। Tomorrow cancer may come in my हो सकता life है तो कल मेरे जीवन में कैंसर भी आ सकता था, and it might take my life away. मेरा जीवन को ले सकता है। But the moment she heard the word of God, लेकिन जब ये वचन उनके जीवन में वो लोग सुने हैं, she started declaring, वो बोलने लगे हैं, Jesus Christ is the Lord over my cancer. यीशु कृष्ण मेरा यीशु मसीह मेरा कैंसर के ऊपर वो प्रभु है। हालेलुया। हालेलुया। यीशु मसीह मेरा दुविधा के ऊपर, मेरा डर के ऊपर, मेरा चिंता के ऊपर, मेरा घबराहट के ऊपर, मेरा भविष्य के ऊपर, मेरा बच्चों के ऊपर, मेरे पति के ऊपर, मेरे रिश्तेदारों के ऊपर, हालेलुया, मुझे चिंता करने वाला हर एक विषयों के ऊपर यीशु मसीह का प्रभुता को मैं आज प्रख्यात करता हूँ। Glory to God. I declare, I proclaim the lordship of Jesus Christ over every strongholds of the devil. Praise the Lord. And she Hallelujah. got victory. तब उनको जीवन में वो विक्ट्री को प्राप्त किए हैं। रात 3 बजे सातान उसको उठाता था। The devil used to wake her up at 3 o'clock. उसको शैतान उनको रात 3 बजे उठाता था, Terrified. वो भयभीत होकर उठते थे। But when she heard the word of God, जब उनको ये वचन उनके जीवन में आया, she started saying victory in the blood of Jesus. वो परमेश्वर के नाम से वो विजय को प्राप्त किए। She's sweating. वो पसीना उनके जीवन में पसीना आ गया था तब उस समय में। She's shaking with fear. वो भय में, वो घबराहट में थे। But she started saying जब वो, लेकिन अभी वो बोलने लगे हैं, victory in the blood of Jesus. यीशु के लहू से उनको विजय प्राप्त हुआ है। Victory in the name of Jesus. यीशु के नाम से उनको जीवन में विजय प्राप्त हुआ है। She started claiming the blessing of God in her वो life. परमेश्वर का आशीष को उनको जीवन में वो प्राप्त करने अभी कर चुके हैं। And वो अधिकार बोलने लगे परमेश्वर का आशीष उनके जीवन में। यीशु के नाम में अच्छा सेहत मेरे जीवन में आ जाओ। यीशु के नाम में मेरा बंधन टूट जाए। यीशु के नाम में मेरे विरोध में खड़ा हुआ शैतान तू दूर हो जाओ। यीशु के नाम में मेरे को चिंता देने वाला, डराने वाला, मुझे घबराहट देने वाला, the devil that is tormenting me, troubling me, making me nervous and not giving fruit in my life, stopping my prayers, not allowing answers to come, in the name of Jesus I pull down those strongholds. और सारे चीजों को मैं अभी यीशु के नाम से उसको नीचे खींचता हूँ। Philippians 4:13 says, फिलिप्पी 4:13 ऐसा बोलता है, I can do all things to Christ मैं मसीह के द्वारा सब कुछ कर सकता हूँ who strengthens me. जो मुझे बल देता है। She started saying it. वो ऐसे बोलने लगे हैं। In her fear she started saying, उनका डर में भी ये ऐसे बोलने लगे हैं। within 1 month, 1 महीने के अंदर, 30 days, 30 दिन के अंदर there was a prayer meeting in her house. उनका घर में एक प्रेयर मीटिंग था। 30 days before I met that sister. 30 दिन के अंदर I met that sister 30 days before. 30 दिन के पहले मैं उस बहन से मिला था। I saw her eating mixed veg. मैं उनको देखा था कि वो मिक्स वेज खा रहे थे। I asked what happened. क्या हुआ? No, something, my body is not all right. Even though nothing is there, still I don't feel like ऐसा it. कुछ नहीं है, फिर भी मेरा बॉडी कुछ अलाउ नहीं कर रहा, मैं नहीं खा रहा हूँ। The brother, her husband said to me, वो भाई ऐसे बोल रहे थे, someone put some fear in her mind. उनका जीवन में कोई ऐसा भय उनका जीवन में Total restriction in the house. उनका जीवन में बहुत सारा रेस्ट्रिक्शन उनका घर में आ गया है। But when the word of God came, लेकिन जब परमेश्वर का वचन उनका जीवन में आया, she started declaring it. वो डिक्लेयर करने लगे हैं, I can do all things मैं through सब कुछ Christ. कर सकता हूँ मसीह के द्वारा। I can get deliverance through Christ. यीशु के द्वारा छुटकारा मेरे जीवन में आ जाएगा। यीशु के द्वारा छुटकारा मेरे जीवन में आ जाएगा। She proclaimed. वो ऐसा बोल रहे थे। Her strongholds started breaking. उनका जो स्ट्रॉन्ग होल्ड था वो धीरे धीरे वो तोड़ने लगे।
and one brick after the other, it started falling. एक के बाद एक गिरने लगा। After 30 days when I went, जब 30 दिन के बाद जब मैंने गया, there was a feast in the church. एक भोजी चर्च में भोजी था। So I was expecting mixed veg will be there on her plate. एक्सपेक्ट कर रहे थे कि मिक्स वेज उनका प्लेट में होगा करके हो गया करके मैं सोचा था। मैं सोचा, लेकिन मुझको भी आश्चर्य करते हुए 2 chicken pieces were there on her plate. लेकिन फिर भी आश्चर्य के साथ 2 चिकन पीस उनका प्लेट में था। वो भी मुझे भी नहीं मिला, चिकन लेग पीस उनका प्लेट में पड़ा हुआ मैं देखा। Praise the Lord. Hallelujah. Hallelujah. I asked her what happened. मैं उनको पूछा क्या हुआ बहन। She told me, वो ऐसे बोल रहे थे मुझे, आपने जो प्रचार किया 30 दिन पहले, I can do all things through Christ who strengthens me. जब आप प्रचार कर रहे थे मैं वो सुना कि मैं मसीह के द्वारा मैं सब कुछ कर सकता हूँ जो मुझे सामर्थ देते हैं। My fear gone. मेरा भय तब वहाँ पर चला गया। My nervousness gone. मेरा नर्वसनेस जो था वो वहाँ पर खत्म हो गया। Today every day there is non-veg in my house. अभी मेरा घर में हमेशा नॉनवेज होता है। And today every day we have oily food also. मैं हमेशा अभी ऑयली फूड खाता हूँ। In the limit doctor has allowed. जब जैसे डॉक्टर ने मुझे लिमिट के हिसाब से बोला ऐसे ही मैं खाता हूँ। We are having good food today. अभी मैं अच्छा खाना खा रहा हूँ। Thank you, Pastor. थैंक यू पास्टर। I said, give glory to God. मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ। He is the one who delivered you. और जो वो परमेश्वर है जो आपको छुटकारा दिया है। If she can get deliverance, अगर उसको उनको अगर छुटकारा मिल सकता है, you and me, आप और मुझे, we can also get deliverance. हमको भी वो छुटकारा हमारे जीवन में भी आ सकता है। Whatever the stronghold of the devil might be, अगर जो भी स्ट्रॉन्ग होल्ड वो शैतान हमारे जीवन में लाया है, we can pull it down in the name of Jesus. आज हमको यीशु के नाम से उसको हमको नीचे खींचना है। The word of God says, परमेश्वर का वचन ऐसा बोलता है, know the devices of the devil. ऐसा कोई युक्ति नहीं है। शैतान का युक्तियों को पहचानना है। शैतान के युक्ति को पहचानो। When we discern the devices of the devil, जब शैतान की युक्ति को हम लोग को पहचानेंगे, when we have Holy Spirit in us, जब हम लोग के अंदर पवित्र आत्मा होगा, when we have the word of God in our mouth, जब हमारे अंदर परमेश्वर का वचन होगा, prayer is going out from our mouth, जब हम लोग प्रार्थना में निरंतर लगे रहेंगे, when we are girded with truth, जब हम लोग धार्मिकता का जिलम पहनेंगे, and the breastplate of righteousness, जो सत्य का कमर और धार्मिकता का जिलम पहनेंगे, and the shield of faith, जब धार्मिकता का जिलम हम पहनेंगे, taking the full armor of God, आपको सारे परमेश्वर का सारे हथियार को हम लोग जब ले लेंगे, in the name of Jesus, तब यीशु के नाम से evil spirit get out of my life. शैतान का शक्ति मेरे जीवन से दूर हो जा। अधिकार के साथ हम लोग बोल सकते हैं। अधिकार के साथ हम लोग बोल सकते हैं। शैतान ने चुराया हुआ हर एक बात को हम लोग वापस प्राप्त कर सकते हैं। Whatever the devil stole from you, your life, your health, your peace, your goodness, your blessings, your promotion, whatever, your education, whatever it might be, pull down the strongholds of the devil. ऐसा जो भी शैतान आपसे छुड़ा के ले गया है, आपका एजुकेशन हो, आपका लाइफ हो, जो भी आपका शांति हो, जो भी हो, हर एक चीज को आज हमको क्या करना है, शैतान को नीचे खींचना है। मेरे साथ बोले, टेल विथ मी, हम मेरे साथ बोले, आई कैन डू, मैं कर सकता हूँ ऑल थिंग्स, सब कुछ कर सकता हूँ थ्रू क्राइस्ट, इस मसीह के द्वारा हु स्ट्रेंथन्स, जो मुझे सामर्थ देता है। हाँ, वहाँ एक और बार बोलेंगे, एक और बार बोलेंगे, मैं यीशु मसीह के द्वारा, यीशु मसीह के द्वारा जो मुझे बल देते हैं, जो मुझे बल देते हैं, मैं सब कुछ कर सकता हूँ। मैं सब कुछ कर सकता हूँ। हालेलुया, 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 हालेलुया। May God bless us with this. परमेश्वर हम सबको आशीष दे।